Every one of us, without any exception, on this earth wants to live our life in bliss, joy, happiness, and ecstasy. Every one of us, without any exception, would like to have work life balance in our life. And every one of us is really working very hard for achieving it. Today, friends, I'm going to share with you one technique of meditation that has helped me for last 23 years in living my life with total work life balance. This technique is Vipassana. I'm sure many of you would have heard of it already. I am also sure that many of you would also have learned this technique of Vipassana and must be practicing as well. Those of you not only practicing but also enjoying the benefits of Vipassana. So before I discuss with you, before I share with you as to what is Vipassana and how you can do Vipassana, how you can learn Vipassana, let us understand one thing, and that is if you and I got to have work-life balance in our life, then it is absolutely necessary that we must understand as to what is the meaning of work-life balance. और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है घर में ज़्यादा रहो, ऑफिस में कम रहो. एंड लेट मी टेल यू, इफ दिस इज व्हाट यू थिंक is spending more time at home and less time in the office, if you think that is what is work life balance, I can tell you that you are completely wrong. And why do I say that you are completely wrong? That is because एक एक्सपेरिमेंट करिए, एक 7-8 दिन की छुट्टी लेके घर पर बैठिए एंड जस्ट वॉच. 3-4 दिन के बाद अगर आपके घर वाले आपसे न पूछना शुरू कर दें कि आपकी छुट्टियां कब खत्म होने वाली हैं, देन यू कम एंड टेल मी. सो वर्क लाइफ बैलेंस डज नॉट मीन टू स्पेंड मोर टाइम इन द हाउस एंड लेस टाइम इन द ऑफिस. डेफिनेटली नॉट. Then the question is, what is work-life balance? And let me tell you, friends, what is work-life balance? Work-life balance means to be able to live life in a way to be able to, number one, gain authority in at least one field related with your profession. To be a star performer in your profession and your organization. To get enough quality time for yourself and for your family, to live your passion, and remember, otherwise there is no meaning. To give your best in every walk of life. तो जो भी आप करते हैं, you should be able to give your best, and that is what is the meaning of work-life balance. To make best use of every moment that we spend on this earth, that is what is work-life balance. To become useful and valuable to all those in whose contact we are. To be able to stand up against wrong, अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके against में खड़े होना, that is the work-life balance. To be able to live a life which is value based, that is what is work-life balance. To live your big purpose. So we are on this earth. We are on this earth with a big purpose. To be aware as to what that big purpose is and to be able to live that big purpose, that is what is work-life balance. To be in very good health always. To be able to help the world become a better place to live than what it was yesterday is work-life balance. To be happy and helping others in becoming happy. Being able to do what you love and like. To earn more money than what Bill Gates, Warren Buffett, Mukesh Ambani, Ratan Tata, all of them put together have earned, but not at the cost of missing on the joys of life is work-life balance. Creating wealth and earning it for good use and not for showing it to others is work-life balance. Full utilization of yourself as a highly precious and invaluable resource. And remember, all of us are extremely rich and precious
precious resource. To be able to make use of ourselves for the benefit of everyone is work-life balance. And finally, to be able to live your life in bliss, ecstasy, happiness, and joy always is work-life balance. Is work-life balance. And this technique of Vipassana, remember, will not only help you in bringing work-life balance in your life, but it will also, as it has helped millions across the globe, it would also help you bring a meaning to your life and help you to live a life which is much more meaningful. Other question that can come to your mind and should come to your mind as to how do I know that I really need to have work life balance in my life. कैसे मुझे मालूम पड़े कि मुझे अपनी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है? And I can tell you it is very simple. If you are suffering from any psychosomatic ailments, that means you need work life balance. And remember friends, what is the psychosomatic ailments? Psychosomatic ailments are nothing but mind related problem. So arthritis, spondylitis, migraine, hypertension, blood pressure, sugar, all these are what? These are all psychosomatic ailments. So if you are suffering from any of these psychosomatic ailments, you need work-life balance. Persistent feeling of frustration and insecurity continuously in your mind, you need work-life balance. No sense of achievement. सुबह से लेकर शाम तक सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऑफिस में काम किया और घर पर आए लेकिन लगता है कि कुछ किया ही नहीं. If that is the feeling that you get, that means you need work-life balance. Smoke a cigarette when faced with a difficult situation. So there are a lot of people. तो जैसे ही उनके साथ में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो इमीडिएटली उनका हाथ सिगरेट की तरफ जाता है और वो क्या करते हैं, वो मैदान वो जैसे ही बात कर उसको छोड़ के जाते हैं बाहर सिगरेट पी के आते हैं. If that is what is happening with you, that means you need work-life balance. Prone to tension, depression and frustration. तो आपको डिप्रेशन फटाक से होता है, फ्रस्ट्रेशन फटाक से होता है, टेंशन अगर आपको फटाक से आती है, that means you need work-life balance. There is a tensed atmosphere at home and everywhere around you. That means you need work-life balance. Constant nagging by others. जो भी आपके जान पहचान वाले हैं वो कंटिन्यूसली आपको कंप्लेंट करते रहते हैं कि आप उनको टाइम देते नहीं हैं वगैरह वगैरह वगैरह. दैट मीन्स यू नीड अ वर्क लाइफ बैलेंस. लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस. तो ऑफिस में गए, काम करने बैठे, बहुत सारे 25-50 कागज सामने हैं, and what you are doing, you are not working on any of the paper, you are just reshuffling the paper, you are not able to concentrate, you are not able to focus कि किसको ध्यान देना चाहिए, किसको समझ के लेना चाहिए, किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए. If that is what is happening with you, you need work-life balance. And finally friends, lack of interest in pleasurable things. Remember, हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं? So as we have pleasure in our life. लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं that they are not interested even in the pleasurable things also. So अगर आप उनसे कहें चलिए पिकनिक पे जाते हैं, चलिए सिनेमा जाते हैं, चलिए कुछ एंजॉय करते हैं, they would say नहीं मैं मेरे काम में बिजी हूँ, मुझे छोड़ दो. So if that is what is happening, that means you need to do something and so as to bring work-life balance. Now friends, it was in the year 1999 that I did my Vipassana first time from the VIA, which is Vipassana International Academy in Igatpuri. Not that I had any difficulty, not that I had any problem, not that I had any challenge, but it was just a curiosity that took me to Vipassana. And I did this program from Igatpuri. I found this program so beneficial, so rich in knowledge, so rich in everything that I started practicing. And then मैंने उसको second time किया. Not only I did it second time, but then I also ensured that my parents did it. I also ensured my in-laws did it, and I can tell you friends, every one of them immensely benefited. As much as when I took my mother for this program in Igatpuri for doing Vipassana, she was suffering from blood cancer. And let me tell you, she was suffering from cancer, and let me tell you, the life was very difficult for her. But after doing Vipassana, I could see that her pains had slowed down and her life after Vipassana
was much more peaceful than what it would have been. Now that is one benefit which I'm sharing it with you. That is because it happened with me. But remember, the benefits of Vipassana are too huge. What is this Vipassana, and how has this come to India? Now remember friends, Vipassana is a technique of meditation which is as old as the time is. It was rediscovered by Gautam Buddha about 2500 years back, and through Gautam Buddha this technique spread all over the globe. लेकिन कहते हैं कि गौतम बुद्धा के 500 साल तक ये टेक्निक पूरी दुनिया में चली, लेकिन उसके बाद में ये लुप्त होती गई और कुछ पॉकेट्स में फिर भी बची रही. And one of the place where this technique was still being practiced, and that was in Burma. And Burma is the place where Satyanarayan Goenka ji was living, and he was a very big businessman in that part of the world. Unfortunately, he suffered some ailment for which he was not able to find any treatment. He went all over the world, but he did not find the solution for this problem. One day he was asked by someone to go and do Vipassana, so he went to his Guruji, who became his Guruji, because first time when he went, he did not know him, Sayaji Uba Khin. He went to Sayaji Uba Khin and told him that I would like to do Vipassana because I have got this health problem. तो गुरुजी बताते हैं कि सायाजी उबा खिन ने उनको फटकार दिया. उन्होंने कहा कि चलो भाग जाओ यहाँ से, अगर तुमको खाली ये बीमारी के लिए विपासना करनी है तो विपासना करने की जरूरत नहीं है. फिर बाद में गोयंका जी ने उनसे विपासना सीखी, और विपासना सीखने के बाद कहते हैं कि सायाजी उबा खिन ने गोयंका जी से कहा कि ये जो विपासना है ये हिंदुस्तान का बर्मा के ऊपर एक कर्ज है, और मैं चाहता हूँ कि ये कर्ज आप चुकाएं. दैट मीन्स आप वर्मा से इंडिया जाएं और इंडिया जाके ये विपासना को पूरी दुनिया में फैलाएं. आफ्टर दैट गोयंका जी केम टू इंडिया and he started teaching people Vipassana, and after his arrival in India, then Vipassana has spread to all over the world, and there are more than 150 centers across the globe. Now what is taught in this technique of Vipassana? So friends, I will share with you everything that is done in Vipassana. So in Vipassana comprises of 3 techniques. Number 1, which is known as Anapan. Now what is Anapan? Anapan is, simply speaking, is watching your breath. So I'm sure friends, when I tell you that Anapan is just watching your breath, so you will be wondering as to what is so great about in watching your breath. I can watch my breath for years altogether. And let me tell you friends, it's not as simple as it appears to be. To watch your breath is one of the most difficult thing that every one of us have to face in our life. And when you would practice, when you would learn this technique, you would notice that your mind is so fluctuating, your mind is so volatile, that within a split of second your mind will take you from here to there to everywhere, and you would not be able to focus on your breath as it is taught in the first part of this technique. So that is Anapan, watching your breath. After practicing watching your breath for 2-3 days, then you come to the second stage, and that is known as Vipassana. And what is Vipassana? Vipassana is का मतलब है कि चीज़ों को एक अलग प्रकार से देखना. विपासना यानी कि चीज़ों को अलग प्रकार से देखना. तो हमारे शरीर में संवेदनाएं उठती रहती हैं, अलग अलग तरह की संवेदनाएं उठती रहती हैं. तो विपासना में क्या करना होता है? विपासना में साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, एज अ विटनेस, आपको वो जो संवेदनाएं उठती हैं शरीर में, उनको देखते रहना है, एंड दैट इज विपासना. एंड फाइनली ऑन द लास्ट डे गुरुजी वुड गिव मेत्ता. एंड व्हाट इज मेत्ता? मेत्ता इज मित्रता. सो every one of us on this earth have a responsibility, have an obligation to make this world a better place to live than it was yesterday, and to keep doing it for all the times to come till the time we are here on this earth. तो मेत्ता का मतलब क्या है? मेत्ता का मतलब ये है कि आपने विपासना सीखी, आपने विपासना की प्रैक्टिस करी, आपको विपासना से जो फायदा हुआ, तो आप अपने मन में ऐसा भाव पैदा करें कि ये जो विपासना मुझे मिली है,
ये पूरे संसार के सब लोगों को विपाशना मिले। जिस तरह से मेरे मन में समता भाव उठने लगा है, जिस तरह से मेरा मन शांत रहने लगा है, उस तरह से पूरी दुनिया में सारे लोगों के मन में समता भाव उठे, सारे लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, समृद्ध रहें। That is what is metta. So this is the content as far as the Vipassana technique is concerned. Number one, you start learning with Anapan, and after Anapan, what you learn Vipassana, and after Vipassana, on the last day, what you do, you learn metta. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार पूरी टेक्निक को सीख जाते हैं तो आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रोग्राम किया और बात खत्म हो गई, नहीं। आपने ये 10 दिन का 10+ 2 डेज का प्रोग्राम आपने खत्म किया, आपने इसको सीखा। अब आपको क्या करना है? अब आपको रोजाना इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसके जो फायदे हैं उनका लाभ ले पाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? 1 घंटा आपको करना होता है। शुरुआत करेंगे आनापान से, फिर विपासना करेंगे, और जब खत्म होने को आएगा उस समय आप मेत्ता देंगे। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ विपासना एज ए टेक्निक। नाउ विपासना के फायदे क्या हैं? विपासना के इतने सारे फायदे हैं कि मैं अगर गिनाते जाऊं तो मेरे ख्याल से आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑल टुगेदर, लेकिन मेरी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, इतने सारे फायदे हैं। और मैं आपको बताऊं कि असली फायदा क्या है विपासना का, वो आपको कब ध्यान में आएगा? वो आपको उस समय ध्यान में आएगा जब आप खुद जाके विपासना कोर्स को अटेंड करेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि विपासना के क्या फायदे हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा एज द बेनिफिट्स ऑफ विपासना। नंबर 1, स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। तो विपासना की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। नंबर 2, स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस। तो हमारी जो उम्र बढ़ रही है उसका जो प्रोसेस है, विपासना की रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है। स्पीड्स अप हीलिंग। सो जब आप प्रैक्टिस करते हैं और किसी भी तरह का अगर आपको कोई दुख है, फिजिकल और मेंटल, उसकी हीलिंग चालू होती है, उसकी स्पीड से हीलिंग चालू होती है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ विपासना। स्ट्रेस रिडक्शन। सो समता भाव आने लगता है, और जब समता भाव आने लगता है तो जो स्ट्रेस का हमारा लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। बेटर ऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस। सो हम जीवन में जो भी बनते हैं वो सारा डिपेंड करता है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं। अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, और हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं तो हमारा जीवन नेगेटिव होता है। विपासना की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छी तरह से ओरिएंट होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और हमारे दिमाग में फिर उसी तरह के थॉट्स आते हैं जो कि हम चाहते हैं, ना कि इनवॉलंटरी थॉट्स। एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट प्रोसेस इवन व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। इम्प्रूव पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो जब आप विपासना प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, रिकलेक्ट पावर बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। ऑटोमेटिकली विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विपासना वी आल्सो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। एनहांसेस मेमोरी, रिफाइनमेंट एंड एनलाइवनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका फिर से पुनर्जीवन होता है, वो उसका री एनर्जाइजिंग होती है जो हमारा नर्वस सिस्टम है। अवेकनिंग ऑफ रीजनरेटिव एनर्जी। तो हमारी जो सेल्स हैं हमारे शरीर में, उन सेल्स की जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते हैं और उस सेल्स फिर से रीजनरेट होते हैं। एंड फाइनली जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड दी ऑर्गन सिस्टम। सो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं ओवर द ईयर्स व्हेन वी प्रैक्टिस विपासना रेगुलरली, वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो नेगेटिविटीज़ हैं जो हमारे मन में बैठी हुई हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो जो नेगेटिव इमोशंस जो हम पता नहीं कितने सालों से नहीं बल्कि कितने जन्मों से कितने सारे नेगेटिव इमोशंस को हम कैरी करते हैं, तो वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी सारे निकल जाते हैं। और जब नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं फिर उसको कहते हैं कि कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कि हमारे जो नेगेटिविटीज़ हैं, हमारे जो पुराने कर्म हैं वो सारे धुल के साफ हो जाते हैं, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। और जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में समता का भाव पैदा होता है।
नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोग्राम। तो अभी आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई इसकी ड्यूरेशन क्या है वगैरह वगैरह। सो लेट मी टेल यू, दिस प्रोग्राम इज ऑफ 10 + 2 days ड्यूरेशन। जनरली हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि विपासना 10 दिन का प्रोग्राम है, पर मैं आपको बता दूं कि विपासना 10 दिन का प्रोग्राम, ये बात सही है, लेकिन चूंकि आपको प्लान करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 10 + 2 मान के चलना होगा। मतलब क्या है, मतलब ये कि एक दिन जो आप वहाँ जाते हैं वो आपका जाएगा, 10 दिन आप वहाँ पर रहेंगे और फिर 12वें दिन वहाँ से आप अपने घर के लिए वापस जाएंगे। तो इसलिए नंबर 1 इज ये 10 + 2 days का प्रोग्राम है। नंबर 2, साइलेंस फॉर 9 days, है ना। तो अब ये विपासना प्रोग्राम का बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें 9 दिन तक आपको पूरी तरह से मौन में रहना होता है। मौन यानी कि कंप्लीटली मौन, यानी कि किसी से बात नहीं कर सकते, पेपर नहीं पढ़ सकते, टीवी नहीं देख सकते, किसी से आंख मिला के भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप किसी से नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू दी आचार्य हु आर देयर और विद दी स्टाफ हु आर देयर। जब आपको कुछ जरूरत बहुत पड़ती है तो, यानी कि जब बहुत ही अवॉइडेबल हो जाए उसी परिस्थिति में आपको अपना मौन तोड़ना है, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हैं, आप अपना मौन तोड़ के अपना ही नुकसान करेंगे। सो 9 दिन तक आपको पूरी तरह से वहाँ शांत रहना पड़ता है। आई एम श्योर ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, अरे बाप रे 9 दिन तक चुप कैसे बैठेंगे, हमको तो तबड़ 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 करने की इतनी आदत होती है कि बिना बोले कैसे रह पाएंगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब भी आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, जब भी आप विपासना सीखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि हो सकता है कि पहले 1-2 दिन आपको लगे, लेकिन जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे आपका मौन और मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होते जाएगा, और मजबूत होते जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको गुरुजी कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि अब आप आपका मौन तोड़ सकते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बिना बोल के इतना खुश हूँ और मेरा बिना बोल के काम चल रहा है, तो मुझे क्यों मेरा मौन व्रत तोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मौन रहना बहुत मुश्किल है, बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू गो देयर इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और नंबर 3, विपासना मेडिटेशन की खास बात यह है कि करीब करीब आपको पूरे दिन में 12 घंटे मेडिटेशन में रहना होता है। सुबह से लेकर शाम तक आप सुबह से लेकर रात तक मेडिटेशन करते हैं। तो आपकी डेली शेड्यूल क्या होती है, व्हाट इज योर डेली शेड्यूल, यू नो व्हेन यू जॉइन दी विपासना कोर्स। सो योर डेली शेड्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम 4:30, तो 4:30 बजे आपको कोई आपकी जो छोटा सा रूम होगा वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आपको कोई जगा के जाएगा, और 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक आप एक्टिव रहते हैं, यानी कि आप जागरूक अवस्था में रहते हैं। और ये दरमियान आप ग्रुप सेटिंग करते हैं। ग्रुप सेटिंग यानी कि सब लोग बैठ के एक साथ जब मेडिटेशन करते हैं उसको ग्रुप सेटिंग कहते हैं। इस 4:30 से लेकर 9:30 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट का भी समय होता है, लंच का समय होता है, रेस्ट का समय होता है, स्नैक्स का समय होता है, और फिर रात को सोने से पहले करीब 8 बजे गुरुजी के जो वीडियो डिस्कोर्सेज हैं वो आपको उनका लाभ लेने का मौका मिलता है, और उसके बाद में फिर आप रेस्ट में जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि ये जो मैंने आपको शेड्यूल शेयर करी है इसमें डिनर का कोई जिक्र नहीं है, और वहाँ डिनर होता भी नहीं है। तो आप ब्रेकफास्ट करेंगे और आप लंच करेंगे। अगर आप पहली बार गए हैं तो आपको मुरमुरे और सिंगदाने का स्नैक्स मिलता है, पहली बार अगर विपासना कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर को लंच करेंगे, और उसके बाद में फिर आप खाली नींबू पानी लेंगे शाम को, उतना ही है। तो ये आपकी डेली शेड्यूल रहती है विपासना में जब आप वहाँ से करते हैं। एंड बाय द वे, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी विपासना सीखिए, कहीं पर भी जाके विपासना प्रैक्टिस करिए। ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ और जो कंटेंट्स जो आपको बता रहा हूँ वो पूरी दुनिया में सब जगह सेम होते हैं, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होता है। दे आर कम्प्लीटली सेम एट ऑल प्लेस। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर मुझे विपासना करनी है तो क्या अरेंजमेंट करने होंगे मुझे। अब देखिए, आपकी लॉजिंग इज टेकन केयर ऑफ, आपकी बोर्डिंग इज टेकन केयर ऑफ, आपकी सपोर्ट सर्विसेज और ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, इवन योर फूड इज टेकन केयर ऑफ, इवन योर लॉन्ड्री इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अब देखिए, सीधी सी बात है, आप विपासना करने पहुंचे हैं, 9 दिन तक आपको बोलना नहीं है। 9 दिन तक अगर आपको बोलना नहीं है तो फिर आप किससे खाना मांगेंगे, किससे किससे नींबू पानी मांगेंगे, या किससे अपनी। तो वो सारा का सारा बंदोबस्त जो सेंटर होते हैं विपासना के, वहाँ पर जो वॉलंटियर्स होते हैं
वो सारा अरेंजमेंट की दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया सिस्टम होता है, इतना सिस्टमेटिक होता है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आपको विश्वास नहीं होगा, अरे बाप रे इतना सिस्टमेटिकली भी कुछ कुछ किया जा सकता है। अब देखिए 10 दिन की आपकी लॉन्ड्री है, आप बोल नहीं सकते, आप एक सेट जगह पे आएंगे, आपकी लॉन्ड्री वहाँ ड्रॉप करेंगे और अगले दिन आप वहाँ पे आएंगे, आपकी लॉन्ड्री लेके जाएंगे। आपको किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इज सो सिस्टमेटिक, एवरीथिंग इज सो सिस्टमेटिक। और जो अरेंजमेंट होते हैं हर सारे विपाशना सेंटर पे, वो जो लेडीज़ हैं उनका अलग जगह होती है और जो जेंट्स हैं उनकी अलग जगह होती है। तो उनके रहने की भी जगह अलग होती है और मेडिटेशन करने की जगह मोस्ट प्लेसेस में अलग ही होती है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर जाके विपाशना करें। लेकिन याद रखिए सेंटर पे जाके फॉर 10 days 12 days व्हेन यू आर देयर, you will not be living together, you will be living at different sections. So if you are a gentleman, you would live with male, and if you are female, then you would live with the female part of section. So this is how the arrangements are done. Who can do it? Obviously everyone can do it, everyone can do it. Vipassana, there is absolutely no issues. चिल्ड्रन के लिए भी अलग तरीके अलग सेशंस होते हैं, पर वो 10 दिन के लिए होते हैं। एडल्ट्स के लिए 10 दिन के सेशन होते हैं। सो एनी एडल्ट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ज्योग्राफी, he can do vipassana, and that is what they do. One thing that you have to do when you join vipassana, you have to follow the panchsheel. Now what is panchsheel? Now remember, panchsheel is what you have to practice, you have to obey when you are at the center. Now really speaking, ये जो पंचशील हैं ये तो हमको हमारे जीवन में वैसे भी फॉलो करने चाहिए। तो पंचशील में क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या हमको ओबे करना पड़ता है। नंबर 1, नॉट टू स्टील। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये विपासना के लिए प्रिपरेशन है। तो चोरी तो नहीं करेंगे, चोरी करने का भाव भी मन में नहीं आना चाहिए, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, नॉट टू स्पीक लाई, असत्य नहीं बोलना है, असत्य बोलने का मन में भाव भी लेके नहीं आना है। Number 3, no interaction with men and women, akam. So there no sex. Obviously, center पर आप हैं तो आपको there is because the arrangements are such, there is no interaction between men and women out there. So अकाम का भाव आपके मन में रहना चाहिए, काम का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। And number 4, no intoxication. तो आप किसी भी तरह का नशा आप उस दरमियान नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आम जीवन में भी हमको नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जीवन में नशा करेंगे तो किसका फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। तो पंचशील में जब आप वहाँ पर हैं तो आपको नशा का त्याग करना होगा। एंड नो वायलेंस, अहिंसा। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स पंचशील जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको वहाँ फॉलो करने होते हैं जब आप सेंटर पर हैं। कैसे एनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए? बहुत आसान है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये इगतपुरी के नंबर हैं, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नंबर पे मालूम कर सकते हैं। बाय द वे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि दुनिया में जितने भी सेंटर हैं विपासना के, विद फ्यू एक्सेप्शंस, एवरीवेयर देयर इज ऑलवेज अ वेटिंग लिस्ट। सो 3-4 महीने की वेटिंग लिस्ट हमेशा रहती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप विपासना करें, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा 3-4 महीने इन एडवांस कि मुझे ये तारीख को विपासना करनी है, और उसके बाद में फिर आप वहाँ बुक करिए। और जो भी जगह आपको करना है, गूगल का ज़माना है, जिस भी शहर में आप रहते हैं, इनवेरेबली हिंदुस्तान के करीब सभी बड़े शहरों में विपासना सेंटर्स हैं, तो आप गूगल करके सर्च करके मालूम कर सकते हैं। या फिर VIA विपासना इंटरनेशनल एकेडमी की जो वेबसाइट है, वहाँ जाके आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड डू। ये VIA क्या है? विपासना इंटरनेशनल एकेडमी। व्हाट इज इट दैट आई हैव, मैंने कई बार जब आपसे बात करी है तो आप जिक्र किया है VIA का। व्हाट इज VIA? VIA इज द मेन सेंटर, दैट्स द हेडक्वार्टर ऑफ विपासना इंटरनेशनल एकेडमी, व्हिच इज बेस्ड इन इगतपुरी, and this is about 40 kilometers away from Nasik. So Igatpuri is in Maharashtra, and Igatpuri is very close to Nasik. It's about 40 kilometers, and it's about 100 and something kilometer from Mumbai.
It's a beautifully located ashram, and I can tell you, I have in my as part of my profession, I have traveled more than 50 locations across the globe, और मैंने दुनिया के बहुत सुंदर सुंदर जगह देखी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इगतपुरी के मुकाबले का रिसोर्ट हिल स्टेशन मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा. It is so beautiful. It's situated in the background. You have a huge mountain, amazingly beautiful place. Then you have many pagodas, extremely done pagodas, and these pagodas of course are used for the purpose of practice of meditation. एंड इगतपुरी में जब मैंने किया था 5-6 मेडिटेशन हॉल थे, बट आई एम श्योर कि उसके बाद में नंबर ऑफ मेडिटेशन हॉल्स मस्ट हैव इंक्रीज्ड. इट्स एंड दे गिव यू वेरी नाइस एंड कॉम्पैक्ट एकोमोडेशन. तो आपको बहुत बढ़िया एकोमोडेशन देते हैं, एंड द अरेंजमेंट्स ऑफ एवरीथिंग आर सिंपली फैंटास्टिक. फूड दैट यू गेट देयर इज एब्सोल्युटली सात्विक. तो जिसको हम बोलते हैं सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, 3 तरह के फूड होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. तो जो खाना आपको वहाँ मिलता है एज अ विपाशना प्रैक्टिशनर, दैट इज द मोस्ट सात्विक फूड दैट यू कैन थिंक ऑफ. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ओके विपाशना कर ली, नाउ व्हाट आफ्टर विपाशना. सो आपने विपाशना सीख ली सेंटर पे, उसके बाद आपको क्या करना है, एवरीडे प्रैक्टिस फॉर 2 hours. Everyday practice for 2 hours, one day in the morning and one day in the evening. I am sure when I say this, most of you will get this question in your mind. अरे बाप रे, एक तो पहली जिंदगी में टाइम कम है, पहली जो टाइम है वो पूरा पड़ता नहीं है, तो ये 1 घंटा 2 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे तो विपाशना तो कैसे काम चलेगा. Let me tell you friends, and this I am telling you based on not only experience of mine, but based on the experience of every vipassana practitioner whom I know. The moment you start practicing regularly vipassana every day, morning and evening, you will realize, first of all, number one, that your sleeping hours will reduce by 1.5 to 2 hours. यानी कि अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे तो आप 6 घंटे सो के भी उससे भी ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे. That's number one. Number two, आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, रिटेंशन पावर, मेमोरी, कंसंट्रेशन, वो सब में इतना बढ़िया इजाफा होगा, वो सब आपके इतने इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप जो काम नॉर्मली करने में 8 घंटे लगाते थे, वही काम को आप 5 या 6 घंटे में कर पाएंगे. तो जो ये 2 घंटे की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन प्रैक्टिसिंग द टेक्निक्स ऑफ विपाशना, रिमेंबर दिस इन्वेस्टमेंट विल गेट ऑटोमेटिकली रिकवर्ड from the same 24 hours that you have. As a matter of fact, with the regular practice of vipassana, you will start finding, oh my God, मेरे पास में इतना समय है कि अब मैं क्या करूं. So this is what you would do. So start practicing every day, twice a day, and then what you can do, you can join the advanced courses. So vipassana is one program. Then there are many other programs of different duration. तो अगर आपने 3 बार विपाशना करी है तो आप एक 7 days का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं, 30 दिन का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई सेंटर है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं. तो जिस तरह से आपकी विपाशना में बहुत सारे लोगों ने मदद करी, उस तरह से आप भी बहुत सारे लोगों की विपाशना में मददगार साबित हो सकते हैं. दैट इज व्हाट यू कैन डू, एंड यू कैन रिपीट विपाशना. सो आपने 10 दिन का प्रोग्राम किया और आपको कभी मौका मिले तो आप वापस से 10 दिन का प्रोग्राम कर लीजिए. तो उससे क्या होगा, उसकी आपकी जो विपाशना है, जो आपका मेडिटेशन है, वो मजबूत होगा, उसमें और ताकत आएगी और उसकी शार्पनेस और बढ़ेगी. 10 दिन का प्रोग्राम करने के बाद में विपाशना के जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो आप कर सकते हैं. 1 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है, अलग अलग सेंटर पर वो आप कर सकते हैं. पर याद रखिए, ये प्रोग्राम आप कभी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आप तभी कर सकते हैं जब आपने 10 दिन का विपाशना का प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं से किया हो. एंड देन यू कैन ऑल्सो डू ग्रुप सिटिंग. सो आपकी जान पहचान में, आपके आसपास में अगर कोई जान पहचान के लोग हैं जो विपाशना कर चुके हैं, तो आप उनके साथ में मिलकर ग्रुप सिटिंग प्लान कर सकते हैं. दैट मीन्स 8, 10, 12, 15, 20 लोग मिलके एक साथ कोई जगह जहाँ सहूलियत हो सबको, वहाँ पर मिल सकते हैं, विपाशना कर सकते हैं. गुरुजी कहते हैं कि जब आप सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं विपाशना, तो उसकी एक ताकत एकदम अलग ही होती है. अब एक सवाल जो 100% आप सभी के दिमाग में आता होगा, वो ये कि इसकी फीस कितनी है. 10 दिन तक वहाँ रखते हैं, खाना खिलाते हैं, सब सारा अरेंजमेंट करते हैं,
और एक बहुत महंगा होगा। 10 दिन किसी हिल स्टेशन पर रहना तो लाखों का बिल आता होगा, और साथ पे खाना तो लाखों हजारों का बिल आता होगा। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, द एंटायर कोर्स ऑफ विपाशना, irrespective of the place that you do it from here, you do it from India, you do it from America, you do it from Europe, you do it from any part of the world, vipassana course is completely free. क्या? हाँ, vipassana course is completely free. 10 दिन का पूरा प्रोग्राम एंड 10+2 days का पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से फ्री है। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस की 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर ये चलता कैसे है? यस, ये चलता इस तरह से है कि जब आप प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, जिस दिन आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है, तो जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं, लोकल सेंटर है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, एक नोट बोर्ड लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये जो विपाशना का ये प्रोग्राम हुआ है, इस पर पर्सन इतना पैसा खर्च हुआ है। अब फिर ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या देना अच्छा लगता है। और मैंने जो देखा है फ्रेंड्स, वो बताऊं कि लोग इतने ओवरवेम हो जाते हैं, लोग इतने खुश हो जाते हैं, उनका मन आनंद से, प्रसन्नता से इतना भर जाता है, कृतज्ञता के भाव से इतना भर जाता है, उनको लगता है कि जो भी देंगे वो कम पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है पर्स निकालते हैं और जितना भी पैसा उनके हाथ में आता है पूरा दे देते हैं। लोग चेन निकालते हैं, पूरी दे देते हैं, अंगूठी निकालते हैं, देते, जो हाथ में आता है वो दे देते हैं, क्योंकि मन में इतना आनंद, इतना उत्साह, इतनी प्रसन्नता बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि जो भी दे वो कम है। सो पूरा प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो पूरा आपकी जो इच्छा है आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं प्रोग्राम आने के बाद, और वो आप दे सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि विपाशना प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करती हैं। मीनिंग अगर आप ऐसी किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जो कि विपाशना स्पॉन्सर करते हैं, दैट मीन्स दे विल गिव यू अ पेड लीव ऑफ 12 days, सो यू गो देयर एंड यू डू नॉट हैव टू you are allowed a paid leave of 12 days, and this is how they sponsor, and I'm sure they must be doing a lot of good work and contribution to those respective centers as the corporates. Government of Maharashtra, I know for sure, also sponsors its employees for Vipassana, and again they also let you do this program without cost. Now there are certain myths that I would like to talk to you, and what those myths are. Vipassana के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, और वो क्या भ्रम है, let us take one by one. पहला भ्रम है, how can I remain without talking for so long? तो मैंने ये सवाल का आंसर पहले दे दिया है कि आपको लगता है कि 9 दिन चुप कैसे बैठूंगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि 9 दिन चुप बैठा तो आगे बिना बोल के भी काम चल सकता है, तो मैं क्यों बोलूँ। दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हाउ डू आई गेट 12 days फ्रॉम माई शेड्यूल। आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, जब आप ये प्रोग्राम जाके ज्वाइन करेंगे, 2-3 दिन के बाद जब आपको विपाशना मिलेगी, और जब विपाशना के आनंद और मस्ती आपके मन में उतरना शुरू हो जाएगा, समता भाव आपके मन में उतरना शुरू हो जाएगा, तो आपको पहला ख्याल मन में ये आएगा, अरे बाप रे, मैं अब तक क्यों मैंने इसका इंतज़ार किया, मुझे तो यहाँ पे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आना चाहिए था। ये आपके मन में भाव आएगा। दूसरा भाव आपके मन में क्या आएगा कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके मन में ये भाव आएगा कि जैसे ही मैं मेरे घर पहुंचूंगा, सबसे पहले मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बोलूँगा कि तुम जाओ और जल्दी से विपाशना करो। और तुम्हारे मन में भाव आएगा कि मेरे माता पिता को मैं उनको बोलूँगा कि जीवन बहुत जी लिया, अब सच्ची मायने में जीवन को जीना है, तो अब एक काम करिए, पहले जाके विपाशना का कोर्स करिए। सो ये जो 12 दिन का जो सवाल है कि मेरे शेड्यूल में से कैसे निकालूंगा, आई कैन टेल यू, ये 12 days are going to be the most precious, most valuable days of your life. यानी कि ये जो 12 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती दिन होंगे in terms of spending them. So उसको बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Number 3, 1-2 hours practice every day. Where is the time? I have explained to you already.
एक दो घंटे का जो आप रोजाना टाइम देंगे विपाशना की प्रैक्टिस में, वो एक दो घंटा आपकी नींद में से निकल के आ जाएगा। आपकी पूरे जो दिन का शेड्यूल है उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग, रिटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सब में इतना बढ़िया इजाफा होगा कि वो एक दो घंटे का समय बड़ी आसानी से निकल जाएगा। Will it lead to renunciation of the world? अब ये बहुत सही मन में लोगों के दिमाग में आता है कि गौतम बुद्धा ने घर छोड़ा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर विपाशना का कोर्स करूंगा तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भी वर्ल्ड को रिनाउंस करूंगा। रिमेंबर, गौतम बुद्धा डिड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड आफ्टर डूइंग विपाशना। गौतम बुद्धा डिस्कवर्ड विपाशना आफ्टर रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। एंड प्लीज रिमेंबर एंड पे अटेंशन, एक हिसाब से अगर आप देखें तो मैं और आप गौतम बुद्धा से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। मैं और आप गौतम बुद्धा से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों कहता हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि गौतम बुद्ध को तो ये टेक्निक रीडिस्कवर करनी पड़ी। उन्होंने तो सालों तक तपस्या करी, उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि विपश्यना क्या है। लेकिन मुझे और आपको तो ये टेक्निक सिल्वर प्लेटर पर अवेलेबल है, सिल्वर प्लेटर पर अवेलेबल है। मुझे और आपको तो विपाशना को सिर्फ जीवन में उतारने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने 23 इयर्स पहले विपाशना का पहली बार कोर्स किया और मैंने संसार नहीं छोड़ा है। मैं संसार में रह रहा हूँ और बल्कि मैं संसार में और भी ज़्यादा आनंद और मस्ती में रह रहा हूँ। लिमिटेड फूड इज गिवन, हाउ विल आई सर्वाइव। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, और आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको मुरमुरे और सिंगानों का स्नैक्स मिलेंगे, एंड दैट्स ऑल। तो एक मन में डाउट आता है, मेरी तो भूख बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे भूखा रहूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे और जब वहाँ पर रहेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जितना भी मिलता है उतना मोर देन सफिशिएंट है, और जितना भी मिलता है उतना ही मोर देन हेल्दी भी है। सो बिल्कुल भी उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। Will I become a Buddhist? So गौतम बुद्धा ने विपाशना को रिडिस्कवर किया, तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैं विपाशना करूंगा तो मैं बुद्धिस्ट हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं आपको कहूँ कि विपाशना करने के बाद आपको रियल धर्म क्या है इसकी जानकारी पड़ेगी, इसका आपको एहसास होगा। जिसको हम आज धर्म मान के चलते हैं वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म क्या है हमको उसका कुछ अता पता ही नहीं है। जब आप विपाशना करेंगे, विपाशना में उतरेंगे, विपाशना को प्रैक्टिस करेंगे, विपाशना को जीवन में उतारेंगे, विपाशना को लिव करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो आप जो भी हों आप वही रहेंगे, आप बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आप सही मायने में धार्मिक बनेंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव है और ऐसा मेरा अपना विश्वास है। What about my own religion? तो आपके रिलीजन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा नाम प्रमोद जैन है, मैं जैन हूँ, मैं जैन धर्म को फॉलो करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ में विपाशना का कोर्स किया है, और वो उनका कोर्स करने के बाद उनका जो धर्म था उनका वही धर्म है, मेरा भी जो धर्म था वही मेरा धर्म है। लेकिन विपाशना करने से धर्म के ऊपर आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। Now the question, $1 million question, $1 billion question, and $1 trillion question. When should I do it? And the answer is, do I have to really give you an answer for this question? अगर आप मर्सिडीज आज खरीदते हैं तो मर्सिडीज का एंजॉय आप आज से करना शुरू करेंगे। 20 साल के बाद मर्सिडीज खरीदते हैं तो आप 20 साल के बाद मर्सिडीज को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप विपाशना आज करते हैं तो आप विपाशना का आनंद बाकी के पूरे जीवन तक ले पाएंगे, और अगर आप विपाशना 20 साल के बाद करेंगे तो ये 20 साल तक आप विपाशना के आनंद से वंचित हो जाएंगे। तो मेरा तो सुझाव यही है, सजेशन यही है, डू इट as quickly as possible, as quickly as possible. So friends, with this we come to the close of this session, and thank you so much. Hope I have answered a lot of questions. I have given you a lot of input about what is Vipassana, and in case if you still have any question or any doubt that you would like to know more about, on the screen you can see my mobile number. You can also see my email ID. Please feel free to write a mail to me,
or please feel free to send a WhatsApp message to me or about anything that you would like to know more about. I would be extremely happy to share and reply to all your doubts and all your queries. So with this, we come to the close of this session. Thank you so much and wish you all to become Vipashi and bring the Samta, happiness, joy in your life. Sarve bhavantu sukhna, sarve sant niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashit dukh bhagavate bhagavate. Om.